Hello, good morning, students. Today I am going to start next unit. It is work, energy, and power. It is a high scoring unit, and moreover, there are so many articles which you have already gone through. So, first, work. What is work? Work is said to be done by a force if it displaces a body in any direction except perpendicular to itself. For example, this is a body. A force F is applied on this body in this direction, and this force is making an angle theta with the horizontal. So this body is moved from position A to position B. So S is the displacement of this body. So this is a displacement vector. So theta is angle between force vector and displacement vector. Then work done by this force in displacing body from A to B is given by dot product of force and displacement, provided this force which is applied on this body is constant. F vector dot S vector can be written Fs cos theta. I have already taught you about this, that A vector dot B vector is equal to AB cos theta. वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था हमने. सो वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम दो वेक्टर्स के बीच में डॉट साइन से इंडिकेट करते हैं मल्टीप्लिकेशन अगर उनका प्रोडक्ट स्केलर हो. अगर इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके नई फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर आए तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन क्रॉस कहलाता है और उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं. Now special cases, when theta is 90 degree, put here theta 90, so it becomes W is equal to Fs cos 90, and cos 90 we know it is 0, so work is 0. So we can say no work is done by a force when body is displaced by force perpendicular to its direction. Some examples: work done by gravity and normal reaction when a body is sliding over a smooth surface is 0. This is a surface, ये बॉडी है. अर्थ विल exert force on this body in downward direction which is called its weight. So this weight या force of या gravity, this is called gravity, force exerted by earth. So table will exert equal force in upward direction, we call it normal reaction. If this body is moved from point A to point B, this is displacement. This is n force normal, angle between normal reaction and this displacement is 90 degree, so no work is done by normal reaction when body is moved from A to, this is A, this is B. Similarly, work done by this gravity, this force is called weight or gravity. Work done by this gravity is also 0 because angle between these two vectors, displacement vector and this gravity is again 90 degrees, so work done is 0. Work done by a centripetal force. If you remember, centripetal force always एक्ट्स टूवर्ड द सेंटर. अगर यहाँ बॉडी है, से ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन.
एंड दिस इज फोर्स। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो एक प्रोटॉन होता है उसके न्यूक्लियस के ऊपर, सो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इधर फोर्स लग रही है, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही डिस्प्लेसमेंट की होती है, बिकॉज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम हैज़ नो डायरेक्शन, सो वी और एस की डायरेक्शन सेम होती है। So we can say this is the direction of velocity vector, or we can say this is also the direction of displacement vector. So angle between displacement vector and force vector is 90. So work done by centripetal force is also 0. Similarly, this is a rigid support, and bob is suspended from this rigid support. It is simple pendulum. ये अरेंजमेंट सिंपल पेंडुलम कहलाता है हमारा। नाउ दीज आर टू एक्सट्रीम पोजीशंस, इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं, दीज आर एक्सट्रीम पोजीशंस। ये इट्स मास इज सेम, तो अर्थ इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी जिसको हम कहते हैं, या वेट। सो दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस बॉब इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसको कहेंगे हम ग्रेविटी या वेट। सो ये है इसके ऊपर अर्थ जो फोर्स लगा, बट दिस बॉब इज एट रेस्ट। अगर ये रेस्ट पे है तो इट मीन्स इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है नेट वो जीरो है। सो दैट मीन्स दिस बॉब मस्ट बी experiencing some force in upward direction, and this force is applied by this thread and it is called tension. This force is tension. तो ये दोनों फोर्सेस आपस में कट गई और नेट फोर्स ऑन द बॉब इज जीरो, दैट्स व्हाई इट विल रिमेन एट रेस्ट। यहाँ पे जो ग्रेविटी है दैट विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज mg and this is tension here। तो यहाँ पे टेंशन इस तरफ होगा। when this bob is released and when it is going from E1 to E2, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगी, दिस इज द पाथ फॉलोड बाय द सेंटर ऑफ द बॉब। तो ये ड्रॉ टेंजेंट, दिस टेंजेंट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी of the bob. So this is the direction of velocity और direction of displacement of the bob, दोनों के बीच में एंगल 90। So work done by tension is also 0. This is direction of displacement, this is tension, so दोनों के बीच में एंगल 90, so work done by centripetal force is also 0. Work done by pulley or porter carrying heavy load on his head while moving from one end of the platform to another end of the platform. So ये कुली है, इसने अपने सिर के ऊपर एक बॉक्स उठा रखा है, तो दैट बॉक्स विल एग्जर्ट फोर्स, दिस इज द बॉक्स, रेलवे स्टेशन पे कुली है। ये जो फोर्स है ये अर्थ नीचे की तरफ लगाएगी ऐसे, बट दिस बॉक्स इज नॉट फॉलिंग डाउन। क्यों नहीं? क्योंकि कुली के सिर ने इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रखी है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। तो दो फोर्सेस, ये बॉक्स के ऊपर अर्थ लगा रही है और ये बॉक्स के ऊपर कुली के हेड ने लगाई। when he is going from one end of the प्लेटफॉर्म टू अनदर एंड, सपोज यहाँ पहुँच गया है तो बॉक्स यहाँ आ गया, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। जो कुली ने फोर्स लगाई, कुली ने या कुली के सिर ने फोर्स लगाई वो ऊपर की तरफ, सो इस फोर्स ने, जो कुली ने फोर्स लगाई बॉक्स के ऊपर, इस फोर्स ने काम जीरो किया, बिकॉज एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल रिएक्शन एंड displacement is 90. So work done is force into displacement into angle होता है, तो यार force is n जो कुली के सिर ने लगाई, displacement is s and
angle 90, so this is 0. Now this work can also be 0 if displacement is 0. So example, work done by a watchman standing near the gate. He is standing, there is no displacement. If no displacement, no work is done. Another very good example, work done by a student who is working very hard near examination days is also 0, because there is no force, there is no displacement. So if there is no displacement, then work is 0. तो पढ़ने में ना ही फोर्स लगती है ना डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सो वर्क डन बाय हिम इज 0. अनदर एग्जांपल, वर्क डन बाय अ पर्सन सपोर्टिंग लोड ऑन हिज हेड. एक कुली ने सामान अपने सिर के ऊपर रखा हुआ है और वो खड़ा हुआ है, सो वर्क डन बाय हिम इज 0 बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. देन थर्ड केस इज when theta lies between 0 to 90, then W is positive. We know in the first quadrant all trigonometry ratios are positive, and here sine and its reciprocal is positive, here tan and its reciprocal, and here cos. So in first quadrant runs from 0 to 90. Second quadrant 90 to 180, third from 180 to 270, and this is 360. इस क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव, इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल, तो इसमें कॉस नेगेटिव होगा. सो जब तक एंगल 0 से ज़्यादा और इक्वल टू 0 बट लेस देन 90 से 89, तो दिस आई एम सॉरी 0 to 90, cos 90 is 0, ये cos 0 is 1 बट नॉट नेगेटिव. वी कैन से 0 से लेके 90 तक कोई भी एंगल, चाहे 40 डिग्री चाहे 45 डिग्री, उसका cos लेंगे तो पॉजिटिव है. अगर 90 से ज़्यादा है, से 91 डिग्री है या 92 डिग्री है, इन सब का कॉस अप टू 180 डिग्री कॉस लेंगे तो नेगेटिव है. सो व्हेन थीटा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90, देन W इज पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव? बिकॉज ये पॉजिटिव होगा. सो पॉजिटिव से गुणा करेंगे इसको F और S को, तो वर्क विल बी पॉजिटिव. एग्जाम्पल, वर्क डन बाय हॉर्स इन पुलिंग अ कार्ट. सो हॉर्स जब भी कार्ट को पुल करता है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, ये एंगल हमेशा ही इट इज़ ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री. जैसे ये दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इधर ही कार्ट सड़क पे चल रहा है और फोर्स घोड़े ने ऐसे जैसे लगाई, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार्ट, और फोर्स थोड़ी सी ऐसे, ये स्ट्रिंग जो होती है घोड़े के साथ बंधी होती है कार्ट से, ये थोड़ी सी ऐसे होती है ऊंची. सो दिस एंगल इज लेस देन 90, सो डेफिनेटली दिस वर्क डन विल बी पॉजिटिव. वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी, ये हमारे पास एक बॉल है. इन ऑर्डर टू लिफ्ट इट वी नीड टू अप्लाई फोर्स. दिस फोर्स इज सपोज 10 न्यूटन, और इसके ऊपर अर्थ ने लगा रखी है 10 न्यूटन. तो अगर हम इसको ऊपर उठाना चाहेंगे तो हमें 10 न्यूटन जितनी अर्थ ने लगा रखी है नीचे की तरफ, उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी इसको ऊपर ले जाने. तो दिस इज लिफ्टिंग फोर्स. तो अगर आपने निकालना है वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी. ए से हम इसको बी पे ले गए, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हुई नीचे से ऊपर की तरफ, और जो फोर्स हमने लगाई ये भी ऊपर की तरफ. तो इन दोनों के बीच में एंगल इट इज़ 0, सो cos 0 इज़ 1, सो वर्क डन विल बी F/S cos 0, और cos 0 इज़ पॉजिटिव 1, सो वर्क डन इज़ पॉजिटिव. सिमिलरली वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, ये हमारा स्प्रिंग है, इसको रिजिड सपोर्ट के साथ आपने बांध दिया, और अगर आप इसको ऐसे आगे खींचेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये इधर फोर्स लगाई
और स्प्रिंग का ये पॉइंट ये यहाँ पहुँच गया, सो डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ, सो both are in same direction, both are parallel, so angle between them is 0, so again work done is positive. So these are some examples of positive work. Now negative work, W is force into displacement into this. A body is dragged on a rough surface, आपने इधर फोर्स लगाई और इस बॉडी को हम यहाँ ले आए, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये डिस्प्लेसमेंट है, आपने फोर्स इधर लगाई, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो वर्क डन बाय यू इज पॉजिटिव। ये आपकी फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी हुई, तो दोनों के बीच में एंगल 0, सो वर्क डन बाय यू इज पॉजिटिव। बट अगर निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बॉडी राइट की तरफ जा रही है, फ्रिक्शन इधर होगा पीछे की तरफ, सो अगर मैं कहूँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, देन इट विल बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल एफ, डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच में एंगल, सो दिस इज एफ एस कॉस 108 is -1, so this is the work done is negative। ये फोर्स, सॉरी दिस इज डिस्प्लेसमेंट, बॉडी आगे जा रही है, और अगर फ्रिक्शन की फोर्स ने जो काम किया वो निकालना है, तो जैसे थीटा इज 180 डिग्री। आई रिपीट, अगर इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट वर्क डन बाय यू, तो ये आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में एंगल लेंगे आप। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का एंगल लेंगे, सो नेगेटिव वर्क डन। सिमिलरली हेयर यू लुक हेयर, अगर आपने निकालना है वर्क डन बाय यू, ये आपने फोर्स ऊपर की लगाई, ऊपर की तरफ लगाई थी, तो इस फोर्स के बीच में और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0। अगर आपको निकालना है वर्क डन बाय दिस फोर्स विच इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये, तो फिर क्या करेंगे आप, वर्क डन बाय दिस फोर्स, ये लेट इट विद एफ डैश, तो नाउ इट विल बी वर्क डन इज इक्वल टू जो फोर्स अर्थ ने लगाई, ग्रेविटी वाली फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुई, इनके बीच में एंगल 180, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव व्हेन बॉडी इज लिफ्टेड। सिमिलरली वर्क डन बाय ब्रेक्स, when vehicle is stopped, ये आपका व्हील, ये इधर जा रही थी गाड़ी इस तरफ, तो इट वॉज रोटेटिंग, तो दोनों के बीच में ट्रैक एंड व्हील, इनके बीच में जो फोर्स थी दैट वॉज रोलिंग फ्रिक्शन। लेकिन when brakes are applied, wheel will not roll but it will skid, ये ऐसे रगड़ता हुआ आगे, and then the force of sliding friction will come into play। तो गाड़ी इधर जा रही थी और व्हील के ऊपर इस तरफ फोर्स लगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, और गाड़ी रुक जाएगी। सो दिस इज ब्रेकिंग फोर्स, जो फ्रिक्शन लगा रहा है, दिस ब्रेकिंग फोर्स, और गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हीकल, सो दोनों के बीच में 180 एंगल, सो वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स इज नेगेटिव। सो दीज आर सम स्पेशल केसेस। नाउ units of work, there are two types of units, absolute unit and gravitational unit। absolute unit फिर से दो प्रकार के, SI and CGS। जैसा हमने फोर्स में पढ़ा था, फोर्स में भी दो प्रकार के यूनिट थे, एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल। वी नो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू दिस। तो SI यूनिट इसका न्यूटन होता है, इसका मीटर, और इसका कोई यूनिट नहीं होता कॉस थीटा का, थीटा का होता है बट कॉस थीटा का नहीं होता। सो इसको हम जूल कहते हैं एंड डिनोटेड बाय J।
इसको न्यूटन को अगर आपको याद हो फोर्स इज एम ए, तो न्यूटन क्या होता है जी, इसका ऐसा यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन का, तो इट इज के जी मीटर सेकेंड माइनस टू, दिस इज योर न्यूटन, के जी मल्टीप्लाइड बाय मीटर सेकेंड माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय इसका यूनिट, ये तो हो गया हमारा न्यूटन मीन्स ये, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, सो इट इज के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू, दिस इज कॉल्ड जूल। सिमिलरली अगर आप सीजीएस यूनिट लेंगे इसका, वो डाइन होता है, तो डाइन और इसका सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर इज कॉल्ड आर्क, सो दिस इज सीजीएस यूनिट। relation between these two, 1 joule is equal to this 1 kg into 1 meter square into second minus 1 kg 10 की पावर 3 ग्राम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और इसकी पावर 2, ये 10 रेज़ पावर 4 बन जाएगी, 10 रेज़ पावर 4 प्लस 3 7, और ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, एंड दिस इज आर्क। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड आर्क। ना ग्रेविटेशनल यूनिट, फोर्स के यूनिट जो हैं, वी नो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ यूनिट, एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल। यू नो फोर्स इज एम ए, अगर ए को हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लें, तो फोर्स का यूनिट क्या बन जाए इसका 1 kg। एक्सेलरेशन आई विल नॉट टेक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं इतना लूँगा, so 9.8 meter per second square, it becomes 9.8 kg meter second minus 2, and this is 9.8, it is called Newton. So this force is called 1 kg weight. So अगर मैं, this is gravitational unit of force, if I take its gravitational unit, तो SI, gravitational unit are further of two types, SI and CGS. तो SI unit, take its SI unit, it is kg weight, इसका मीटर, this is called kg मीटर, इसको हम वेट को छोड़ देते हैं, तो it is SI gravitational unit of work. CGS unit is gram weight, और it is equal to 980 dyne, laws of motion में पढ़ चुके हैं। So take its CGS unit, gravitational CGS unit, वो है हमारा 1 ग्राम weight into centimeter, so it is gram centimeter, it is the CGS gravitational unit. So it is details. Now see, 1 kg meter means 1 kg weight, kg meter ये फोर्स का यूनिट, 1 kg weight, look here, 1 kg weight into मीटर को हम kg मीटर कहते हैं। I repeat, 1 kg weight into meter is called kg meter. It is SI gravitational unit of work. So 1 kgm means 1 kg weight into meter, 1 kg weight इतनी फोर्स होती है, and 9.8, 1 kg weight is 9.8 न्यूटन मीटर, दिस इज 9, इसको जूल कहते हैं हम, सो 9.8 जूल, और इसको मैं जी लिख सकता हूँ, सो 1 kgm इज इक्वल टू जी जूल, 1 kg मीटर इज इक्वल टू जी जूल। Dimension of work, you can calculate, this is dimension formula of force, dimension formula of displacement, this is of cos theta, dimensionless, so this is the dimension formula. Now example, this is a lawn roller and a gardener is pulling lawn roller with a force of 50 Newton.
making an angle 60 degree with the horizontal. गार्डनर इस रोलर को ए पॉइंट से बी पॉइंट ले गया फोर्स लगा के. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय गार्डनर? दिस डिस्प्लेसमेंट ए बी, पहले यहाँ था लॉन रोलर, फिर यहाँ पहुँच गया. डिस्प्लेसमेंट इज गिवन 100 मीटर. So W is magnitude of force multiplied by magnitude of displacement into दोनों vectors के बीच का angle. So it is 50 Newton. S is 100 meter. Theta angle between these two 60 degree, which is half. It is equal to 550 Newton multiplied by 100 multiplied by cos 60 means इतना. तो ये 50, आंसर यहाँ मीटर आएगा. सो इट इज़ 2500 न्यूटन मीटर विच इज़ जूल. नो देन वर्क डन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. वी नो वर्क इज फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. एक चीज़ और, W ये है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिखना चाहूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा. सो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म कैन बी रिटन इक्वल टू दिस. Fx इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स वेक्टर along x-axis. Similarly, this is component of force vector along y-axis, and this is along z-axis. I cap, j cap, and k cap are unit vector. This displacement, it can be written component of displacement along x-axis into I cap, then component of displacement along y-axis into j cap, and similarly this. So this is dot. ये सारा ब्रैकेट दिस इज़ वैल्यू ऑफ फोर्स वेक्टर, और ये अगला ब्रैकेट ये है एस वेक्टर. सो वी नो आई डॉट आई इज़ 1, आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है. तो इसमें आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है. तो अगर आप इससे बारी बारी मल्टीप्लाई करें इसको फिर इसको फिर इसको, तो पहली टर्म में आएगा एफ एक्स इंटू एस सबस्क्रिप्ट एक्स इंटू आई कैप डॉट आई कैप. आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट एफ एक्स इंटू एस वाई इंटू आई डॉट जे कैप जो कि 0 होता है. और इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आएगा आई डॉट के कैप, वो भी 0 होता है. तो ये 3 टर्म बचेगी हमारे पास. सो दिस इज इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म. नाउ वेरी important example, a body is forced to move along z axis. वो z axis की तरफ ही चलती है और फोर्स जो उसके ऊपर लगाई गई है वो इतनी है, और 4 मीटर z axis की तरफ गई. तो व्हाट इज़ द वर्क डन? इस फोर्स ने बॉडी को 4 मीटर along z axis डिस्प्लेस किया. तो व्हाट इज़ द वर्क डन बाय दिस फोर्स? दिस फोर्स कैन बी रिटन लाइक दिस. ये मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है, ये -1 डॉट आई कैप. तो दिस -1 इज कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, और ये इफ़ यू कंपेयर विद दिस तो आई कैप का कोफिशिएंट एफ एक्स, तो ये वैल्यू है एफ एक्स की. दिस इज एफ बाई 2, दिस इज एफ जेड. फ्रॉम हियर इट इज़ वेरी इजी टू सी. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 4 मीटर है, दिस इज मैग्नीट्यूड. लेकिन अगर ये हुई है अलॉन्ग जेड एक्सिस तो इसके ऊपर मैं वेक्टर तब लगाऊंगा जब इधर डायरेक्शन दिखाऊंगा. सो इट इज़ एस वेक्टर इज़ 4 मीटर गुणा 1 अलॉन्ग जेड एक्सिस. तो इधर डायरेक्शन लिख दी मैंने राइट हैंड साइड पे, तो इसके ऊपर वेक्टर लग जाएगा. और ये चीज़ दिस इज़ डिनोटेड बाय के कैप. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट 4 के कैप मीटर यू कैन राइट. This can be rewritten as vector 0 I cap plus 0 j cap plus ये 4 k cap. Now this is fx, this is s subscript x, this is f by, this is f z, और ये है हमारा s by, this is s z. So इसमें वैल्यू पुट करो
इस रिलेशन में एफ एक्स -1, ये -1, एस एक्स 0 प्लस एफ वाई एस वाई, दिस इज एफ वाई, दिस इज एस वाई, ये विजुअल, देन एफ जेड इज 3, एस जेड इज 4, तो ये 12 न्यूटन मीटर आ जाएगा एंड दिस इज 12 जूल है। नाउ वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स से काम निकालना। पहले जो हमने वर्क डन निकाला दैट वाज फॉर कांस्टेंट फोर्स। सपोज एक बॉडी को फोर्स यहाँ से ए से बी तक ले गई, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन, एंड दिस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। तो जब ये बॉडी पी पॉइंट पे थी, ये बॉडी को फोर्स इधर लेके गई, तो जब ये यहाँ थी तो सपोज इसके ऊपर जो फोर्स लग रही थी उसकी डायरेक्शन ये थी और इसका मैग्नीट्यूड एफ था। आई रिपीट, ये यहाँ एफ डैश हो सकता है, यहाँ एफ ट्रिपल डैश हो सकता है, इसकी डायरेक्शन भी बदल सकती है, वैल्यू मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है। तो हियर इट्स मैग्नीट्यूड वाज एफ एंड ये डिस्प्लेसमेंट हुई और ये एंगल था दोनों के बीच। सो हम ये मानते हैं कि P से इस Q बिंदु तक जब ये फोर्स इसको लेके गई तो इस फोर्स की वैल्यू P से Q तक लगभग कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर मान लिया 5 न्यूटन थी तो यहाँ घट के सपोज 4.99 न्यूटन। तो देयर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ फोर्स एट P एंड Q। अगर ये P और Q एक दूसरे के और भी पास हों तो यहाँ P था, यहाँ Q था, तो ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ से फोर्स यहाँ तक जब जाए, बॉडी जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो फोर्स 5 से 500 हो जाएगी। नो, देयर विल बी नेग्लिजिबल चेंज। जैसे यू कैन से कि आपकी बाइक यहाँ से यहाँ तक गई, तो यहाँ वेलोसिटी थी आपकी बाइक की 40 किलोमीटर पर आवर और ये काफ़ी दूर है बी पॉइंट, सो यहाँ पे होगी से 45 किलोमीटर पर आवर। आपने एक्सेलरेटर को प्रेस किया, तो अगर मैं यहाँ 40 है तो यहाँ कितनी हो, बिल्कुल पास है एक पॉइंट, तो यहाँ 40 थी तो यहाँ 40.002। सो मैं ये कहता हूँ कि जब 2 पॉइंट एक दूसरे के बहुत ही करीब हो तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो वैल्यू थी फोर्स की लगभग उतनी ही यहाँ पे। तो इफ़ दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर तो इट इज़ पॉसिबल, इट कैन बी अज्यूम्ड कि फोर्स यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग दिस बॉडी फ्रॉम P टू Q? दिस इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, DS से लिख रहे हैं, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, स्मॉल वर्क डन बाय दिस फोर्स इज F वेक्टर डॉट DS वेक्टर। टोटल वर्क डन निकालना हो तो यू इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन W आ गया, और this is the initial position and this is the final position, so these are the limits, and angle between F vector and DS vector is theta, so we can also write it equal to this। ये जो है इंटीग्रेशन, ये आपको देगा एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो तो उसके नीचे जो एरिया होगा दैट विल गिव अस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हमने ये पहले इम्पल्स के लिए किया था, दिस इज फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये ऐसे ऐसे वेरी कर रही है, बढ़ रही है फोर्स, फिर कांस्टेंट होगी थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद घटने लगी। सो दिस कर्व इज ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। इसके कर्व के नीचे जो एरिया है, दिस एरिया विल गिव अस द वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स। इट इज area which will give work done. Suppose force acting on a body is given by this, and body is displaced from x is equal to 2 meter to 5 meter. Calculate work done by this force. Look carefully, this force is variable. See,
Force is 2x plus 3x square plus 5. दिस इज एक्स एक्सिस. इस फोर्स की डायरेक्शन जो है अलोंग एक्स एक्सिस ही रहती है. देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स. डायरेक्शन इधर ही रहती है और बॉडी इस तरफ डिस्प्लेस हो रही है. तो एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज 0. ये x0 है ओरिजिन. यहाँ फोर्स की वैल्यू निकालनी है. पुट x0 5 न्यूटन आएगी. यहाँ पे x 1 मीटर हो गया. यहाँ फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? पुट x इज इक्वल टू 1. सो इट इज 3 प्लस 2 5. इट इज 10 न्यूटन है. देन यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 मीटर. तो यहाँ इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है. पुट x इज इक्वल टू 2 और यहाँ भी x इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी एंड आई होप इट विल बी 21 न्यूटन. यहाँ पे 3 मीटर यहाँ पे आ गए हम. यहाँ इस फोर्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पे x3 और यहाँ भी x3 पुट करेंगे तो इट इज़ 38 न्यूटन. यहाँ 4 मीटर डालिए. x इज इक्वल टू 4. इट विल बी 61 न्यूटन एंड दिस इज 5 मीटर. हेयर इट विल बी 90 न्यूटन. सो यहाँ पे फोर्स जो है 5 न्यूटन टूवर्ड्स एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस. यहाँ पे फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, यहाँ और बढ़ गई, यहाँ और बढ़ गई. दिस बॉडी जिसको कि हम ऐसे इधर लेके जा रहे हैं से ये बॉडी यहाँ से लेके जा रहे हैं, यहाँ से और यहाँ तक. सो दीज आर लिमिट्स कि x की वैल्यू इट विल वेरी फ्रॉम 2 मीटर और ये फाइनल वैल्यू दिस इज x2 इज 5 मीटर. सो दीज आर लिमिट कि x की वैल्यू मिनिमम विल बी 2 मीटर एंड हाईएस्ट विल बी 5 मीटर. सो वर्क डन. फोर्स इधर लग रही है बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो दिस इज फोर्स बट इट इज़ वेरिएबल एंड डिस्प्लेसमेंट इधर. तो दोनों के बीच में एंगल इज 0. सो स्मॉल वर्क डन. ये 2 पॉइंट ले लेते हैं हम बीच में. तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. दिस इज सपोज बॉडी को हम यहाँ से यहाँ लेंगे. दिस इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. इट इज से dx. इट इज़ बेटर टू कॉल इट dx बिकॉज ये x एक्सिस के ऊपर और फोर्स इस तरफ है. यहाँ से यहाँ तक हम ये मान के चलेंगे कि फोर्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक F न्यूटन ही है. सो देन दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन. अगर ये बाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएगी तो यहाँ डी बाई आएगा. अगर जेड एक्सिस के अलॉन्ग जा रही होगी तो डी जेड आएगा और ये कॉस 0 रहेगा बिकॉज दोनों के बीच में एंगल 0. एफ एंड डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट. नाउ एफ की वैल्यू पुट करी मैंने, ये आ गया. दिस इज वैल्यू ऑफ एफ और ये डी एक्स हमारा. इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म ये आ गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड टर्म. डी एक्स सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया. एंड अब मैं इसको x1 2 मीटर और x2 5 मीटर ये नहीं लिख रहा हूँ. आई एम सिंपली राइटिंग 2 इज़ द लोअर लिमिट, 5 इज़ अपर लिमिट. दिस इज़ कॉन्स्टेंट, टेक इट आउट. ये भी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लीजिए. दिस इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर. तो ये आ गया हमारे पास. वी नो दिस फॉर्मूला. x की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू x की जो पावर है उसमें एक जमा कर दो डिवाइड बाय पावर प्लस 1. कब? व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू -1. इफ़ n इज़ -1 ये -1 एंड प्लस 0 हो जाएगा एंड इट विल बिकम इन्फिनिटी. तब ये फार्मूला नहीं लगेगा. सो हियर x है, ये x की पावर 1 लिखूँ इसको. तो इसका इंटीग्रेशन n 1 है, 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 ये आ गया. हेयर x इज़ 2 तो इसकी जो पावर है उसमें एक जमा कर दिया डिवाइड बाय 2 प्लस 1. एंड डी एक्स का इंटीग्रेशन ओनली x हम पढ़ चुके हैं मैथमेटिकल टूल्स में. सो ये 2 आएगा, ये 2 और ये 2 कट गया. ये 3 है, ये डिनोमिनेटर में 3 आएगा कट गया. सो ये रह गया हमारे पास. नाउ लिमिट्स. दिस इज़ लोअर लिमिट एंड ये अपर लिमिट. पहले इस x की जगह, x इज़ वेरिएबल नॉट पावर, तो इस बेस की जगह जो x है पहले आप अपर लिमिट पुट करो माइनस इस बेस की जगह लोअर लिमिट 2 है और उसकी पावर 2.
सिमिलरली हेयर इस x की जगह पहले अपर लिमिट विच इज़ 5 का क्यूब आ जाएगा माइनस इस बेस की जगह लोअर लिमिट। सिमिलरली यहाँ पे x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट। सो इट इज़ 153 जूल। दिस द वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट वर्क। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट इसका एनर्जी और वर्क एनर्जी पावर, 3 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई मैंने इसमें आपको, तो आई होप कि तुम इनको पढ़ोगे। सो थैंक्स अ लॉट।